So suppose there are many banks in the country. Okay, a lot of banks, say पंजाब नेशनल बैंक है और मल्टीपल अलग अलग कंपनीज है, ठीक है, जैसे पीएनबी हो गया, स्टेट बैंक हो गया, कनाडा हो गया, अलग अलग है. ओके, एंड लेट अस स्टार्ट फ्रॉम विनीत. ओके, सो विनीत इज द फर्स्ट पर्सन. कोई एक जन मीटिंग लेफ्ट किया ना, किसने किया? आयशा ने. ओके, सो विनीत इज द फर्स्ट पर्सन टू विजिट अ बैंक, सपोज पंजाब नेशनल बैंक. ओके, विनीत के बोर्ड दिख रहा है बाय द वे सबको? ओके, सो विनीत केम and he deposited 100 rupees, 1000 rupees suppose with Punjab National Bank. Okay, so Vineet deposit कितना हो गया? 1000 rupees. Now विनीत के खाते में 1000 rupees है. ओके, but सही है सबका? हाँ, 1000 rupees विनीत के खाते में. अब कैश रिजर्व रेशियो इज 10%. ओके, ऑलराइट. सो पंजाब नेशनल बैंक आरबीआई के साथ कितना रखेगा ये बताओ? अगर कैश रिजर्व रेशियो 10% है, 1000 रुपए डिपॉजिट आया उसके पास, तो आरबीआई के साथ पंजाब नेशनल बैंक कितना पैसा रखेगा? 100. वेरी गुड, 100 रुपीज. 100 रुपीज रख दिया इसने. नाउ इट हैज ओनली 900 रुपीज with themselves. Now suppose a second person came, say Anisha. Anisha came to this Punjab National Bank and asked for loan कि मेरे को लोन चाहिए. Okay, and Punjab National Bank gave a loan of 900 rupees to Anisha. Okay, so they gave out a loan of 900 rupees to Anisha. Now Anisha went to her bank, State Bank of India, and she will deposit 900 rupees to State Bank of India. Okay, so what is the deposit of Anisha? 900 rupees, right? समझ में आ रहा है सबको? अभी if CRR is 10%, then what is the amount which State Bank is supposed to keep with RBI? $90,810. 90. So State Bank will keep 10% of 900, that is 90 with RBI. Now State Bank has 900 minus 90, that is 810 rupees with them. ठीक है? Now suppose Gurpreet came and asked for loan from State Bank of India. Okay, and State Bank will give him a loan of how much? कितना लोन मिलेगा गुरप्रीत तुमको? सर सीआरआर कितना था? सीआरआर 10% था. कितना लोन मिलेगा? 810. वेरी गुड, 810. सो गुरप्रीत के पास 810 रुपीज आ गया लोन का. ओके, ये 810. नाउ गुरप्रीत will deposit this money to his bank. Suppose he has Axis Bank. उसने 900 रुपया 810 रुपीज एक्सिस बैंक के पास डिपॉजिट कर दिया. सो व्हाट इज द डिपॉजिट ऑफ गुरप्रीत? 810 rupees. Okay, now who is the next one? Nikhil. Now Nikhil came and asked for loan from Axis Bank. Then what is the value of loan which Nikhil will get? Nikhil, कितना लोन मिलेगा तुमको? निखिल, हाँ भैया, कितना लोन मिलेगा तुमको एक्सिस बैंक से? एक मिनट. 810. 729. 810 नहीं मिलेगा
बिकॉज 810 इज द डिपॉजिट विद एक्सिस बैंक, तो पहले एक्सिस बैंक को इसका 10% रिजर्व बैंक के साथ रखना पड़ेगा. So 81 rupees, right? 10% of 810 is 81 rupees, which Axis Bank will keep with RBI. So what is the value left with Axis Bank? 729. 729. Yes, yes. So 729 will be the loan received by Nikhil. Now Nikhil suppose deposited this in his bank. Suppose Yes Bank. Okay. 729 डाल दिया तुमने. So what is the deposit of Nikhil? 729. Right? Now Rohit came. Okay. And Rohit asked for loan from Yes Bank. Then Rohit तुम्हें कितना लोन मिलेगा? $656. Are you Rohit? 656.1 कुछ. Yes, very good. 656.1 because 72.9 will be with RBI. So इसको 72.9 729 से 72.9 को माइनस करो तो कितना हो रहा है? How much is coming? कितना आ रहा है? 656.1. So this will be the value of money which you will be receiving. So Rohit अब इस 656.9 को किसी बैंक में डाल देगा. अभी मान लो उसने ये किसी और बैंक पे डाल दिया, सपोज बैंक ऑफ बड़ौदा पे 0.1. So now the deposit for Rohit is 656.1. और ये प्रोसेस आगे और भी चल सकता है, राइट? मैं जितना चाहे उतना लोगों को इसमें इंक्लूड करके ये प्रोसेस आगे बढ़ा सकता हूँ, तो राइट? है कि नहीं? यस. नाउ टेल मी, इकोनॉमी में जब विनीत ने कोई पैसा डिपॉजिट नहीं किया था, ओके, उस वक्त भी ये सारा बैंक एग्जिस्ट करता होगा इकोनॉमी में. बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल, एक्सिस सब था इकोनॉमी में, लेकिन उन सब के पास पैसा कितना था ये बताओ. Zero. Yes, very good. उन सब के पास 0 रुपीज था. But when Vineet started depositing money or Punjab National Bank started giving out loans, then what is the amount of money which the economy has now? Add करो इसको. So 9 6 15 1 2 4 5 9 9 8 17 7 24 30 4095.1, right? सो इकोनॉमी में 1000 रुपीज इंक्लूड किया किसी ने, और इकोनॉमी ने, बैंकिंग सिस्टम ने उसको कितना बना दिया? 4095.1 रुपीज. तो दिस इज कॉल्ड क्रेडिट मल्टीप्लाइंग. इस तरह से बैंक पैसा आपको बनाता है. ओके. अब ऐसा तो नहीं है कि, अब देखो, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में अगर अनीशा आती है पैसा मांगने, तो बैंक वाले को उसका जो भी पैसा है 900 रुपए देना पड़ेगा. अगर विनीत आता है पंजाब नेशनल बैंक के पास, उसको 1000 रुपीज देना पड़ेगा. इसका मतलब क्या है कि बैंक जो है पैसा बना रहा है. हर स्टेज में बैंक पैसा क्रिएट कर रहा है. समझ में आ रहा है बात? ये समझ में आया सबको कि नहीं आया? किसको डाउट है? अनीशा? ओके. नाउ तो ये क्रेडिट मल्टीप्लाई है तो? हाँ, क्रेडिट मल्टीप्लाई. निखिल समझ में आया तुमको? निखिल है यहाँ पे? निखिल? अच्छा, अभी देखो, इकोनॉमी स्टार्ट कहाँ से हुआ था? 1000 से, राइट? 1000 से प्लस 900 प्लस 810
प्लस 729 प्लस अप टू ऐसे जाएगा. ओके राइट. सो चेंज इन मनी सप्लाई. ठीक है, ये देख रहे हैं हम लोग. तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक दूसरे तरीके से. सपोज this is 10 cube, this is 900 cannot be written. Okay, 9 by 10. Okay, okay. So कोई बता सकते हैं कौन सा सीरीज है? Which series is this? 1000, then 900, then 810, then 729. Which series is this? GP. Very good, very good. GP series. So this is a geometric progression of infinite. Okay. तो अनीशा एंड निखिल, तुम लोगों ने चैप्टर नहीं किया है एपीजीपी. जीपी इज अ सीरीज जिसमें वी हैव अ कॉमन रेशियो. फॉर एग्जांपल 4, 8, 16, 32. दिस इज अ जीपी सीरीज जिसमें तुम एक नंबर को दूसरे नंबर से अगर डिवाइड करोगे तो रेशियो सेम आएगा. 8 को 4 से डिवाइड करो 2 होना है, फिर 16 को 8 से डिवाइड करो फिर भी 2 होना है, फिर 32 को 16 से डिवाइड करो फिर भी 2 होना है. सो जीपी सीरीज एक ऐसा सीरीज होता है जिसमें कॉमन रेशियो होता है. ओके, तो इसमें एग्जैक्टली वही है, इसमें कॉमन रेशियो है. अगर तुम 900 को 1000 से डिवाइड करो तो कितना आ रहा है? 9/10, राइट. 9/10. फिर अगर तुम 810 को डिवाइड करोगे 900 से, if you divide 810 by 900, again you will get 9/10. So you are getting the same common ratio every time. So this is a GP series. अच्छा, now Rohit, can you tell me अगर infinite GP का सम हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? गुरप्रीत, तुम्हें पता है? What is the sum for infinite GP? and 1 by नहीं भूल. नहीं बोलो बोलो बोलो, ठीक ही बोले तो शायद. वापस बोलना, क्या बोला? फर्स्ट में फर्स्ट टर्म होगा हाँ, like first term. 1000 into हाँ, फर्स्ट टर्म. फिर जो रेशियो है -1. You are somewhere close, very close actually. Okay, so the formula for infinite series sum is first term by 1 minus common ratio. Okay, first term by 1 minus common ratio. दिख रहा है बोर्ड में तुम लोग को? राइटिंग दिख रहा है? आई डोंट थिंक दिख रहा है. एक मिनट रुक जाओ. The formula is a by 1 minus r, first term by 1 minus common ratio. So यहाँ common ratio कितना है? 9/10, right? So del m will be 1000, that is first term by 1 minus 9/10. तो कितना हो रहा है ये? 1000 by 10 minus 9/10. So 1000 by 1/10. Okay. Now ये 1000 क्या था, ये बताओ. ये 1000 क्या था? इनिशियल डिपॉजिट, राइट? 1000 वाज इनिशियल डिपॉजिट, है कि नहीं? सो इनिशियल डिपॉजिट को हम लोग डेल्टा डी पकड़ते हैं, डेल्टा डी. ओके, इनिशियल डिपॉजिट यानी कि जहां से सिस्टम शुरू हुआ इज डेल्टा डी. सो आई कैन राइट डेल्टा डी in place of 1000. Now delta m by delta t, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको नीचे ले आऊं, so it will be 1/1/10, that is 10, right? यानी कि क्रेडिट मल्टीप्लायर रेशियो जो है या फिर क्रेडिट मल्टीप्लायर जिसको कहेंगे वो 10 है.
इसी को कहते हैं क्रेडिट मल्टीप्लाई। तो कितना आ रहा है 10। इसका मतलब क्या हुआ कि इकोनॉमी में जो क्रेडिट है वो 10 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। बात समझ में आया? मतलब एक एक इंडिविजुअल का डिपॉजिट है वो टाइम्स ज्यादा बढ़ रहा है मल्टीप्लायर। इसका मतलब हुआ इकोनॉमी में अगर 1 रुपया जाएगा तो वो 10 रुपया बनेगा। समझ में आया? अनिशा, रोहित, निखिल, इज इट क्लियर और शैल आई रिपीट इट? है Okay. अच्छा, now can you tell me what is the income of Reserve Bank of India? क्या? व्हाट इज द इनकम? हाँ, ये पूरे प्रोसेस में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कितना रेवेन्यू हुआ, कितना कमाया उसने? 4095.1। क्या बोली अनिशा, वापस बोलो। 4095। कैसे निकाली तुम? भाई तो किया है। ये वाला ऐड कर दी क्या? भैया अरे भाई 409.51 होगा। 4095.1 तो कॉमर्शियल बैंक का इनकम है। ये तो बैंक में कितना डिपॉजिट है वो दिखा रहा है। मैं बोल रहा हूँ रिजर्व बैंक के पास कितना पैसा गया। हाँ तो वो ऐड हो जाए फिर ये वाला 109। हाँ अच्छा, तो इसको अगर ऐड करते हैं तो कितना होगा? 9874 to 343.9। लेकिन सिस्टम यहाँ पे रुक नहीं रहा है, इसके बाद और भी लोग आके डिपॉजिट करेंगे पैसा, राइट? तो वो कैसे निकाले हम लोग? तो चेंज इन रिजर्व बैंक का मनी तो 100 है, फिर 90 है, फिर 81 है, फिर 72.9 है, इस तरह से चलते रहेगा। तो अगेन ये भी एक जीपी सीरीज है, राइट? जिसका भी कॉमन रेशियो क्या है? 9/10। तो अगेन इसको लिख सकते हैं हम लोग 100/1 माइनस 9/10, यानी कि 100/1/10 यानी कि 1000। रिजर्व बैंक के पास कितना आ जाएगा? 1000। समझ में आया बात? हाँ भैया। अच्छा, अब ये बताओ, ये प्रोसेस तो कंटिन्यू होगा, मैंने बोला हम लोग 4095.1 पे अटक गए, रुक गए। इनिशियली डिपॉजिट कितना था? 1000 रुपीज। क्रेडिट मल्टीप्लायर का वैल्यू कितना आया? डेल्टा एम बाई डेल्टा सी कितना आया? डेल्टा एम बाई डेल्टा डी कितना आया था? क्रेडिट मल्टीप्लायर कितना आया था? अभी निकाला था ना नीचे। हेलो, कितना आया था क्रेडिट मल्टीप्लायर? भूल गया 2 मिनट में। रोहित, याद नहीं है भैया। अरे अभी कराया क्रेडिट। हाँ 9/10। नो नो, नॉट 9/10। 9/10 तो कॉमन रेशियो था। अभी हम लोगों ने क्या किया? हम लोग का इक्वेशन क्या था? डेल्टा एम इज इक्वल टू 1000/1/10। 1000 को डेल्टा डी बना दिया था, तो आ गया डेल्टा एम बाई डेल्टा डी इज इक्वल टू 1/1/10। तो इसका वैल्यू कितना होगा? वन बाई 10 10 होगा। यस, 10 होगा। सो क्रेडिट मल्टीप्लायर का वैल्यू कितना आया था? 10 आया था। जो मैंने बोला कि 1 रुपया अगर इन्वेस्ट करोगे तो वो 10 रुपया हो जाएगा इकोनॉमी में, राइट? समझ में आया सबको? क्रेडिट मल्टीप्लायर का वैल्यू क्या है? ओके तो अब ये बताओ, इकोनॉमी में 1000 रुपया विनीत ने डाला था, तो वो एट लास्ट ये स्टेप होते होते लास्ट में कितना रुपया होगा फाइनल में? ये पूरा अगर चलते रहा प्रोसेस तो लास्ट में जाके कितना होगा? 1000 से 10 कितना? एनीवन? क्रेडिट मल्टीप्लायर का मतलब क्या है कि क्रेडिट कितना टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो तुम लोन दे रहे हो कितना टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सबसे पहले 1000 रुपीज का डिपॉजिट हुआ है और क्रेडिट मल्टीप्लायर का वैल्यू 10 है, तो कितना हो जाएगा पैसा?
10 10,000. times. Yes, very good. 10,000. So it will be 10,000 rupees. ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन आएगा तुम लोग का, एक एक मार्क्स का, दो मार्क्स का, कि अगर क्रेडिट मल्टीप्लायर का वैल्यू इस तरह से दे देगा, क्रेडिट मल्टीप्लायर इज 3 and money supply is 100 crores deposit, then what will be the money supply? So 100 crores into 3, that is 300 crores. बात समझ में आया? Okay, any question from this point, from this topic? ये बहुत जरूरी टॉपिक है, इसको घर में एक बार प्रैक्टिस करो. ये जीपी सीरीज, जो लोग का मैथमेटिक्स नहीं है वो लोग भी, जो जीपी सीरीज किस तरह से सजाया जाता है ये वो, ठीक है. ओके, नाउ देयर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स विद दिस क्रेडिट मल्टीप्लायर थिंग. कुछ प्रॉब्लम होता है, जैसे जरूरी नहीं है. देखो अभी क्या हुआ कि पहला स्टेप में कौन आया था पैसा लेने? अनीशा. तो अनीशा ने जब 900 रुपीज लोन लिया, तो जरूरी नहीं है कि वो 900 का पूरा 900 स्टेट बैंक में डिपॉजिट कर देगी, राइट? हो सकता है 900 में उसने सिर्फ 400 डिपॉजिट किया, बाकी 500 वो घर में रखा उसने, या 500 उसने स्पेंड कर दिया. तो इन दैट केस ये सीक्वेंस जो है ना टूट जाएगा, जीपी सीरीज फिर नहीं बन पाएगा, तो ये वैल्यू हम लोग को नहीं मिल पाएगा 10, है कि नहीं? है ना? अगर कोई भी एक बंदा पैसे को पूरा अमाउंट अगर डिपॉजिट नहीं करता है, तो ये प्रॉब्लम होगा कि नहीं होगा? अरे हाँ या ना बोलो यार, हाँ भी. है ना? अच्छा, तो ये एक प्रॉब्लम है क्रेडिट मल्टीप्लायर का. और प्रॉब्लम्स भी है, और प्रॉब्लम्स अगर मैं काउंट करूं तो क्या है, जरूरी नहीं है कि लोग पैसा सेव करेंगे. बहुत लोग लोन लेते हैं, किस लिए? एक्सपेंस करने के लिए. अगर तुमने कार खरीदने के लिए लोन लिया हुआ है, तो तुम लोन लेके उसको वापस डिपॉजिट नहीं करोगे, लोन लेके कार खरीद लोगे, राइट? और चेन टूट जाता है तो फिर ऐसे फॉर्म यूज होता है या फिर कुछ और होता है? नहीं, यही फॉर्म यूज होता है, लेकिन ये क्या है ना, अलग अलग चेन जब तक चला तब तक का एक चेन कैलकुलेट होता है, फिर उसके बाद कहीं से शुरू हुआ, फिर वो चेन अलग कैलकुलेट होता है. ओके, और इकोनॉमी में सिर्फ 5-6 लोग नहीं रहते हैं, और सिर्फ जैसे हम लोगों का एजम्पशन क्या था कि विनीत स्टार्टेड डिपॉजिटिंग मनी एट पंजाब नेशनल बैंक, और बाकी बैंक के पास नील पैसा था. ऐसा नहीं होता है. एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली जो 5 लोग हैं वो लोग 5 अलग अलग बैंक पे डिपॉजिट कर सकते हैं. ओके, तो देयर आर सर्टेन अजम्पशंस जो इसमें हम लोगों ने कंसीडर किया है. और प्रॉब्लम क्या है इसका और प्रॉब्लम है कि लोन लेने वाले लोग होने चाहिए. ओके, इंटरेस्ट रेट फिर फैक्टर बन जाता है कि इंटरेस्ट रेट कितना है. लोन अगर लोग लेंगे तो इंटरेस्ट रेट को ध्यान में रख के ही लेंगे. तो बिजनेस साइकिल कैसा चल रहा है, वेदर डिप्रेशन इज देयर और रिसेशन इज देयर और बूम इज देयर और बस्ट इज देयर, ये सब देख के इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करना है कि नहीं पैसा, इन्वेस्टर्स नया फैक्ट्रीज लगाना चाहते हैं कि नहीं. अब समझो पूरे कंट्री वाइड अगर रिसेशन चल रहा है, तो इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि बैंक से लोन लेने को कोई आएगा ही नहीं, राइट? क्योंकि लोन क्यों लेते हैं लोग? इन्वेस्ट करने के लिए. और अगर रिसेशन चल रहा है तो इन्वेस्टमेंट का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट से कोई रिटर्न नहीं मिलेगा उन लोगों को, तो वो लोग लोन भी नहीं लेंगे, तो क्रेडिट मल्टीप्लायर बन ही नहीं पाएगा. क्योंकि क्रेडिट मल्टीप्लायर का एकमात्र जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो लोन देना. Notice that if Punjab National Bank would have not given loan to Anisha once Vineet has deposited 1,000 rupees, तो इकोनॉमी में पैसा बन ही नहीं पाता, 1,000 का 1,000 ही रह जाता. So this is very crucial on the part of bank to give out loans. Okay, so that फिलहाल अभी डिप्रेशन में है या रिसेशन में, दिस इज ह्यूज रिसेशन टाइम एक्चुअली. इंडिया में तो रिसेशन काफी अच्छा है, अब काफी हाई पीक पे है एक्चुअली अभी. ओके, सो द इन्वेस्टर्स आर नॉट इन्वेस्टिंग इन न्यू बिजनेसेस, और जो भी इन्वेस्टमेंट था कंट्री में वो तो निकल जा रहा है अभी. आई डोंट नो वेदर यू हर्ड द न्यूज और नॉट, हार्ले डेविडसन का जो बाइक है वो अब इंडिया में नहीं बिकेगा, मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दिया. सो दिस इज सुना परसों ही तो आया. So this is disinvestment from the country. Okay, because the investors are not getting incentive to invest, तो निकल जाएगा वो लोग, so there will be a loss to the overall economy. All right. Now, if Chinese companies are banned, then all the Chinese outlets will be gone from the market. So investment नहीं होगा. So attack on the economy. So it is on the part of investors, the business cycle, all these things work together
to figure out the fact that whether this will work or not. So this is again a limitation of credit multiplier. What are the other limitations? The other limitations can be habit of people. Some people don't have a habit of savings. अच्छा भैया, हाँ बोलो. इससे क्या बोलते हैं, मतलब कोई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी तो कम जाएगा, नया तो हो ही सकता है ना. किससे किससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कम जाएगा? मतलब जैसे वहाँ उससे रिलेटेड वर्कर्स से वो अनएम्प्लॉयड हो गए, अभी हार्ले डेविडसन चल वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे. तो फिर हाँ, ऑफ कोर्स अनएम्प्लॉयमेंट तो होगा ही. यू आर राइट, देयर विल बी अनएम्प्लॉयमेंट. इसके बाद तो ऐसे बहुत सारे तो स्टार्टअप कर सकते हैं. Startup is not that easy, right? Now notice, now the point raised by Vineet that there will be unemployment in the country. Now if people are unemployed, then their income will stop, and if income stops, then automatically savings will fall. क्योंकि जो लोग के पास इनकम ही नहीं है वो लोग सेविंग्स कहाँ से करेंगे? So it's a both side playing together. One party has to save and other party should have to demand for loans. Right? कोई एक अगर रुक जाता है तो सिस्टम उतना स्मूथली वर्क नहीं करेगा जितना करना चाहिए. So these are limitations, okay? And there are other limitations also given in your books. Just एक मिनट रुक जाओ. Let me see. Uh, uh, yes, so okay, cash reserve ratio also plays a role. कि कैश रिजर्व रेशियो का वैल्यू कितना उस पर भी डिपेंड करता है कि कितना लोन देगी बैंक. ओके, बिजनेस साइकिल आई टोल्ड, monetary policy of the central. So these are the limitations. Okay, itna hi limitations hai. Now we have functions of central bank, which I will discuss in the next class. Okay. Any questions from here? No questions? Okay. So okay. So if there are no questions, then let me sign off.